Hello, good evening. How's this awesome Tuesday afternoon treating you? हम लोग बात कर रहे हैं आज थर्मोडायनेमिक्स की as you can see and yeah, this is going to be a one part, right? Exemplar अगर आपको solve करना है, that's going to be a two-parter on the JEE channel. But हम लोग आज करेंगे subjective exercises, NCERT की as always. And description has the links to all the sessions we've done so far और आगे भी करते रहेंगे. पूरा 11th का हम लोग कर रहे हैं एक करके उसके बाद 12वीं का भी करेंगे. So, how confident are you about thermo on a scale of 1 to 10? आई नो थर्मो में थोड़ा सा मैथ्स आया था जिसकी वजह से थिंग्स गेट लिटिल बिट अनोइंग बट देयर आर सम कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स ऑफ थर्मो दैट आर स्टिल प्रीटी चिल राइट स्पॉन्टेनिटी को लेकर या फिर बस प्लस माइनस साइन को लेकर कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है राइट क्योंकि केमिस्ट्री में वर्क इज माइनस पीडीवी फिजिक्स में इज प्लस पीडीवी एटसेट्रा एटसेट्रा इफ यू वांट टू चेक आउट द थियोरी रिलेटेड टू थर्मो प्लेलिस्ट हैं आप चैनल पे जाके देख सकते हैं फॉर नाउ वी गोना फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस and at the end, by the way, at the end, we've got a JEE main question also for you. And I thought, hey, why not? अगर आपको पसंद आ रहा है ये स्टाइल की we'll do usual NCERT stuff and in the end एक दो JEE main के भी सवाल because sometimes JEE main के सवाल भी थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के नीट में आ जाते हैं right that's what we have seen in the past so we are trying this out let me know what you think about this and हाँ if you haven't already subscribed that would be pretty cool hi Devanshi Titraj Ashwini Bhagya Pampa and Radhika so great to see all of you here all right I feel like मैं थोड़ा बीच में हो गया okay I'll move myself a little bit to the side all right I think this is better all right cool ठीक है चलो let's start with the first question first law in physics and chemistry exactly Ashwini yeah physics and chemistry में बिल्कुल work का sign अलग होता है but the actual meaning is the same yeah energy is neither created nor destroyed that's the first law right so maths wise the numbers are absolutely fine वो बस देखने का तरीका अलग है ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री बोलता है पॉजिटिव फिजिक्स बोलता है भाई ऑन द सिस्टम नेगेटिव है बाय द सिस्टम पॉजिटिव है इट्स नो बिग डील एनीवे लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन पहला सवाल चूज द करेक्ट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड वन अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी used to determine heat changes whose value is independent of path used to determine pressure volume work whose value depends on temperature only now इन चारों में से this is like just a question make you know to make sure कि सब लोग सो नहीं रहे हैं everyone just awake this is one of those questions इसमें सोचने की जरूरत नहीं है you see it you mark the answer you move on that's what we expect from you right now 2 says Bhagya 2 we will accept and we will move on yeah you only care about the initial and final stage not the path by the way path होती क्या चीज है why did I include this question of all the questions इतना basic question मैंने क्यों डाला because a lot of times because the way people teach अब उनको understanding ऐसी होती है path मतलब उनको लगता है कि ये वाला path you know physical path this is path 1 this is path 2 sure this works for distance and displacement and all of that distance में काम करता है but distance these are not thermodynamic paths yeah maybe on a PV graph they are thermodynamic path का क्या मतलब है reversible irreversible fixing some variables all of these are different paths आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है because all of these are different paths और इसका ये भी इसका best consequence है to understand delta s is always q reversible by t yeah integral of q reversible by t closed integral जो भी बोलते हैं delta s of system यानी कि आपका सिस्टम रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो p equal to 0 v equal to 0 q equal to 0 जो भी हो delta s of the system is always going to be dq by dt dq by t and पूरा इंटीग्रेट करके मतलब closed integral of q reversible by t इसका क्या मतलब है maybe we don't have to go into so much detail but we look at it last question is on this idea yeah good job भाग्या तीर्थराज राधिका अश्वनी कृष्णा पंपा एंड स्वतीत सब लोग ने बिल्कुल सही बोला ओके 2 with that roman numerals thank you स्वतीत choose the correct answer ये तो हम लोग कर चुके हैं अगला वाला for the process to occur under adiabatic conditions the correct condition is what adiabatic कभी कभी adiabatic को isentropic भी बोलते हैं आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं क्यों क्योंकि जैसे मैंने बोला था डेल्टा एस इज व्हाट अच्छा बता दो इसका आंसर देना टेल यू व्हाई आइसेंट्रोपिक क्यों बोलते हैं सेम एंट्रोपिक क्यों बोलते हैं बताता हूं पहले इस वाले का आंसर बताओ स्पॉइलर हो जाएगा चेक कम्युनिटी पोस्ट ओके कृष्णा जायसवाल वी विल चेक कम्युनिटी पोस्ट ओह ऑल राइट इट्स ओके देवांशी बाद में देख लेना नो प्रॉब्लम लेट्स चेक द कम्युनिटी पोस्ट बिकॉज कृष्णा बोल रहे हैं क्यों क्या हो गया कम्युनिटी पोस्ट में कुछ गलत डाल दिया क्या जो डालना नहीं चाहिए था जैसे जब बोलते हैं चेक तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया 1 डे अगो नहीं कम्युनिटी पोस्ट तो अच्छा डाला ही नहीं कम्युनिटी पोस्ट यही आप बोल रहे हो अरे बाप रे डालना तो चाहिए है ना कम्युनिटी पोस्ट डालना तो चाहिए अभी तो उनको बोलते हैं कि अभी स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑन द लाइव शीट कम्युनिटी पोस्ट गया कहाँ हाँ इस बार आई थिंक दे जस्ट फॉरगॉट टू डू कम्युनिटी पोस्ट डोंट वरी अबाउट यू नो आई एम लाइव राइट नाउ मैं हूं आपके सामने
पोस्ट देखने का क्या फायदा है ना? मैं खुद साक्षात आपके सामने हूं। ऑल राइट, 1 सेकेंड। कूल कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं था, स्टूडेंट्स बता रहे हैं। गुड गुड, थैंक यू, यू गाइस आर माय आईज एंड ईयर्स। थैंक यू कृष्णा जायसवाल। या एनीवे, दिस टू, थैंक्स कृष्णा भाई साहब। ऑल राइट, चलो लेट्स गो बैक टू दिस। सर 3 में डेल्टा क्यों होना चाहिए? अश्विनी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन अश्विनी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सबने सही बोला। तीर्थराज, तनु वर्मा, गुड, वेलकम वेलकम। भाग्या, पीयूष, वेलकम। पंपा, अश्वनी, स्वतीत, राधिका, कृष्णा अगेन and are all saying 3. All right. Ashwini has asked a wonderful question. Should it be delta Q? अच्छा, डेल्टा क्यू का क्या मतलब होगा? थोड़ा सोचो डेल्टा क्यों डालते हैं। 2 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं, लेट्स टॉक अबाउट देम टुगेदर। आइसेंट्रोपिक मतलब डेल्टा एस इक्वल टू 0। और ये डेल्टा कॉन्सेप्ट आता कहां से? डेल्टा तब होता है जब यू हैव अ फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। मतलब कि इफ यू हैव अ स्टेट फंक्शन, स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर, स्टेट फंक्शन की अगर बात हो रही है तब डेल्टा आता है। अब ये पाथ फंक्शन, उसमें डेल्टा कहां आना? थोड़ा सोचो। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डी और डेल्टा इन वर्क ऑन क्यू, इट्स अ पाथ फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? मेक्स नो सेंस, मेक्स नो सेंस। ठीक है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। अजीब लग रहा है, नो। देखो, वर्क इज डिफाइंड एज माइनस पी डीवी, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड यू इंटीग्रेट वर्क, यू गेट पी डेल्टा वी व्हेन पी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अभी लोग ठीक है इतना अच्छे से पढ़ाते नहीं, डोंट वरी, हम लोग ठीक से पढ़ाते हैं। तुम अभी मूड नहीं है पढ़ने का, अभी एग्जाम देना है, नो, इसलिए थ्योरी विल गो विद। अगर आपको थर्मो की थ्योरी देखनी है, मैंने बहुत सेशंस किए हैं, आई गिव यू द लिंक्स टू देम, आई गिव यू द लिंक्स टू देम। सो टू से डीक्यू एंड डीडब्ल्यू इज एक्चुअली इनकरेक्ट टेक्निकली। अगर आप कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब, दे डोंट से दोस थिंग्स, दे डोंट से दोस थिंग्स। ठीक है, एनीवे, वो कहाँ गया यार? फाइल ओपन, रिसेंट कहाँ है? बहुत चीजें हैं एनसीईआरटी लैब मैनुअल स्ट्रीम की। ओ गॉश, लुक्स लाइक मैंने कुछ डिलीट कर दिया। Oh gosh, never mind. It's just like my handy of notepad where I open up a notepad and I keep all the things that you need. I think I'm bad at saving things. Lab manual links. Oh great, I have it here under NCERT lab manual links. Yeah, here it is. Yes, Q हमेशा 0 होगा पीयूष, not delta. Yes, विकास, Q will be 0. You're all absolutely right. Q होगा 0, not delta. You understand? तो थोड़ा सा वो बारीकी वाली बात है। अभी इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर मार्क्स इन द नीट एग्जाम। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट। तो Q इक्वल टू 0, या फिर कुछ बुक्स, कुछ इंडियन ऑथर लोग डी क्यू भी लिख देते हैं, डीडब्ल्यू लिख दो, इट्स ओके, डजंट मैटर। ठीक है, ओके। बाय द वे, मैं ये बता रहा था आपको थोड़ी सी थ्योरी वाली बात कि इस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज डेल्टा एस इज अगेन इंटीग्रल ऑफ Q रिवर्सिबल बाई T। ठीक है, ये क्लोज वाला क्या मतलब है? मतलब यू जस्ट हैव सम लिमिट्स, ओके, इट्स नॉट जस्ट एन, डोंट वरी अबाउट द मैथ, बट मतलब कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के बीच में। ठीक है, लेट्स जस्ट राइट लाइक दैट, इट्स इजियर लाइक दिस। ठीक है, अगर Q होगा 0 तो डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, मतलब सेम एंट्रोपी, एंट्रोपी नहीं बदल रही है। थोड़ी थोड़ी थियोरी हम लोग सोचे इसमें कर देते हैं, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स थियोरी भी काफी भारी है ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। The enthalpy of all elements in their standard states are एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल। यस फरहान, एग्जैक्टली, थैंक यू। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ रहे लग रहा है। अब सब्जेक्टिव में ऐसे सवाल है तो क्या करें, है ना? लेट्स गो अहेड एंड डू दिस, को करते हैं, लेट्स डू दिस वन। ये वाला भी डायरेक्ट ही लग रहा है मेरे को, आपको क्या लग रहा है? इज दिस डिफिकल्ट? आई फील दिस वेरी डायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट थियोरी है, इसी से आप फिगर आउट करते हैं कि कैसे पूरा वो डेल्टा एच का निकालेंगे। या सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डेल्टा एच फॉर्मेशन, यू से it is the summation of all of them. Actually Plateau formation का definition क्या होता है? You are forming one mole of product, और इसको हम लोग यूज करेंगे आगे when we solve what is ये पूरा enthalpy of reaction जब करेंगे ना, you can define in terms of formation, combustion, बहुत चीजों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। So we'll address that also, don't worry। अगर one mole of product फॉर्म हो रहा है तब उसको डेल्टा एच नॉट एफ बोलते हैं। अगर one mole of reactant रिएक्ट कर रहे हैं, one mole of stuff burning, this is बैड इंग्लिश में लिख देते हैं, राइट, देन दैट इज डेल्टा एच ऑफ कंबशन। यहां पे 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट, और स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है।
which is pretty interesting. मतलब डेल्टा HF is actually very difficult to find. Can you imagine? Like C, ये है solid graphite specifically, और उसके साथ मैंने ऐड किया 2 H2 गैस, gives me methane. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो इसका मुझे डेल्टा HF निकालना, अब ये कैसे निकालूं मैं? I don't know. C का 0 है, इसका 0 है, कैसे निकालूं? So what you do instead, you take and you burn it. You burn this, okay, plus oxygen, जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, CO2 plus H2O. And after you burn this amazing substance, you get अच्छा इसकी कुछ हीट निकलती है. You get delta H combustion. And similarly, you get delta H combustion of all of these things, and it so happens out कि ये सब होता ही नहीं है. And बहुत ही घुमा फिरा के you get delta HF. अगर आपने थियोरी सेशन देखें, you will be appreciated. अदरवाइज याद नहीं आ रहा तो छोके बाद में देख लेना. अगला सवाल देखते हैं. The U naught of combustion of methane. अरे I did not know this was coming. देखो, और मे बी subliminally मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया. Delta U naught of combustion of methane is minus x kilojoule per mole. The value of delta H naught is which of these? अब ध्यान रखो, यहाँ पे साइन और सब कुछ ध्यान में रखना है. 0 0 0 0. पीयूष, अश्वनी, तीर्थराज, राधिका, विकास, पार्थ वेलकम, पार्थ, कृष्णा, फरहान अख्तर साहब हमारे बीच में, भाग्या are all saying 2. पंपा, राधिका, oh no 0, sorry, कुछ लोग 2 बोल रहे थे, 2 पूछा था. ओके, हे फरियाल, गुड आफ्टरनून. अच्छा, अब इंग्लिश भारी है? नहीं यार, मेरी इंग्लिश तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है. अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो बोल दो, आई विल रिपीट इन हिंदी. सलगोत्रा जी, आई विल रिपीट इन हिंदी, एनीथिंग यू डोंट फॉलो. ओके, 3, a lot of people are saying 3 or C. What do you do in this question like this? You say delta H is delta U plus delta NGRT. अब ये डेल्टा U की वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट डेल्टा NG? इसको लिख देते हैं. व्हाट डू यू हैव? मीथेन का रिएक्शन लिख लेते हैं. मीथेन का रिएक्शन क्या है? CH4 plus 2O2, अभी लिख दिया था मैंने, CO2 plus H2O. नाउ यहां पे ये लिक्विड है, अनलेस यू हीट दिस अप टू ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस. अगर आप 100 डिग्री के ऊपर जा रहे हो तब ये हो जाएगा गैस, अदरवाइज इट्स गोना स्टे लिक्विड. बाय द जेईई में ऐसे सवाल आ चुके हैं कि जो कंबस्शन होता है whatever 120 degree something like that, उसमें this will change, but right now we don't have to worry about all that. So delta NG क्या होगा? It will be 1 minus 2 minus 1, मतलब negative 2 हो जाएगा. अगर delta NG negative 2 है तो delta H is something negative, something more negative. So delta H is going to be smaller than delta U. Yeah, well, the modulus, the actual value is going to be larger, but actual numerical value जो नेगेटिव साइन के साथ वो छोटी होगी. कूल, सिंपल. अश्वनी थिंक्स इट्स इक्वल. अश्वनी, द रीजन आई एम कॉलिंग यू आउट स्पेसिफिकली इज इक्वल तो नहीं हो सकती ना. इक्वल तभी होगा इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0, ओनली देन इट विल बी इक्वल. तो इक्वल तो नहीं हो सकती है. बाकी सब आप लोग जो बोल रहे हैं, आई थिंक आई एग्री विथ यू. तीर्थराज, भाग्या, पीयूष, विकास, वेलकम विकास, राधिका, पंपा, भाग्या अगेन, ताबिया, वेलकम, एंड फरियाल आर ऑल सेइंग 3. अश्विनी, आई होप यू अंडरस्टैंड. कोई चक्कर नहीं, यू डोंट हैव टू रिट्रैक्ट योर आंसर एनीथिंग. हमारा सेशन में बहुत वेरी 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 चिल पीपल, वी आर ऑल सपोर्टिव. सो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही मेरे से पूछ लो, एंड दैट्स ग्रेट दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग दिस, कीप पार्टिसिपेटिंग. इट्स ओके अगर आंसर सही गलत डजंट मैटर, बट एटलीस्ट दैट वे आई विल नो व्हाट यू थिंक, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम and 394 joule of work is done by the system. बहुत straightforward का सवाल. What is the change in internal energy of the process? I wonder इसको कैसे किया जाए. First law of thermodynamics की जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, वही यहाँ पे करना है, वही यहाँ पे करना है. In fact, actually there are two ways to do this. एक तो फॉर्मूला मत करो, दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो. Yes, 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 अश्विनी. Well, if it's greater than 100, तब 1 होगा या फिर कुछ और होगा. देखो, if it's greater than 100, if it is greater than 100, then it will be equal. सही बोला, सही बोला. अगर 100 से ऊपर है, then it will be equal. Sure. Okay, अश्विन. या बढ़िया 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 बढ़िया. या वाह पीयूष, जल्दी से इसका आंसर बता दो. और ये भी है भी थोड़ा डायरेक्ट ना. डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू. अब क्यू दिया है, डब्ल्यू दिया है, साइन बस देखना है. क्यू इज पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव. बस हो गया खत्म. अब देखो, दिस इज अ वंडरफुल थिंग. ये प्लस माइनस अगर आप नहीं मत करो, इफ यू जस्ट रिमेंबर इट एज, फिजिक्स में क्या बोलते हैं? फिजिक्स में बोलते हैं कि डेल्टा यू इज क्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर दे डिफाइन डब्ल्यू एज प्लस पी डीवी. हम लोग ये फिजिक्स में बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि बाद में नोट्स देखें तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए. हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं
कि डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, where W is defined as minus P dV. You see that दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ देखो स्वतीत ने कुछ, हाँ आई एम नॉट अ टीचर, आई एम एन इम्पोस्टर श्रीकांत, असली टीचर बाद में आएंगे, ठीक है। डेल्टा यू इज 407, अच्छा 407 307, कुछ लोग अलग नंबर बता रहे हैं। यार तेरा 407 कैसा है पीयूष, सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे कर दिया क्या? ओके, ब्यूटीफुल तीर्थास, थैंक यू फॉर दैट डिटेल्ड एनालिसिस। विकास, पीयूष चेंज देयर आंसर, ओके ठीक है। स्वतीत ने ऐड कर दिया, राधिका 307, अश्वनी इज ऑन 307, ऑलराइट। सो आई फील दैट द आंसर शुड आल्सो बी 307। आप जो 10 कुछ नहीं, कहां गया 1095 स्वतीत जो बोल रहे थे, that will happen if you add it up, right? If you add them both up. And in fact, even with the physics definition, now देखो I'm proving to you, even with the physics definition, answer same ही आता है। Try करके देखो खुद, स्वतीत, if you want you can try this out. Even with the physics definition, the formula changes, see, since W is plus P dV, delta U is Q minus W, और वहां पे शायद फिजिक्स में U नहीं बोलते हैं, वहां पे E बोल देते हैं, सेम ही चीज है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Should be 307, okay? So कीप इन माइंड कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये बहुत जरूरी है दिमाग में रखने के लिए। दीज आर इजी मार्क्स यार, फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे, तो करो थर्मोडायनेमिक्स को आराम से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be negative 742.7 kilojoule per mole at some temperature. Calculate enthalpy change for the reaction at the same temperature. Yes, by the system, इसीलिए नेगेटिव। फिजिक्स में पॉजिटिव हो जाएगा, पर फिजिक्स में फॉर्मूला ही बदल जाएगा, फिजिक्स में फॉर्मूला इटसेल्फ बिकम डेल्टा यू इज क्यू माइनस डब्ल्यू, सो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ओके कूल। Let's try this one out. Same चीज है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस NGRT। ट्राई करो, सीधा साधा सवाल है। एक अगर आपको हेल्प चाहिए, व्हाट आई डू, यू बिकॉज एनसीईआरटी में कैलकुलेटर है तो यूज कर लो, और कैलकुलेटर नहीं है तो दिस इज द स्कैम दैट आई डू। आई विल टेक दिस एज 300 केल्विन, आई विल टेक R टू बी 25/3 जूल पर मोल केल्विन, जस्ट टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट आंसर। अगर आप पक्का आंसर लाना चाहते हो ना, use a calculator. But I'll tell you, show you something very interesting at the end of this question. काफी interesting चीज है, and this is what happens in most reactions. Okay, heat absorbed means plus. Exactly, श्रीकांत, बिल्कुल सही बोला आपने। heat absorbed मतलब अच्छी बात है। by the way, एक छोटी सी चीज और ये है कि heat और work दोनों स्केलर क्वांटिटीज ही हैं। just because they have a sign doesn't mean कि वो वेक्टर है, ठीक है। स्केलर वेक्टर ये कहां से आ गया? नॉर्मली आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, साइन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब होता है, उसके बाद साइन होता है। वर्क एंड हीट, दे आर स्केलर क्वांटिटीज, ओके। वर्क इज व्हाट, F डॉट D, इट इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ? अब प्लस माइनस इज जस्ट लाइक अ बैंक, बैंक में पैसा डाला प्लस, बैंक में से पैसा निकाला माइनस, ओके। सो इट इज लाइक एडिंग एंड रिमूविंग, हेंस द प्लस एंड माइनस। इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। गलती से भी ये मत लिख देना कि भाई Why does work have sign? Because vector होता है, नहीं होता है ना। फिजिक्स का आइडिया यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, इट इज स्केलर, ओके ऑलराइट। विकास 741.5 नेगेटिव 741.5, पीयूष बिल्कुल सही बोला, भाग्य आप भी सही बोल रही थी, आई डोंट नो आपने क्यों बदला। तीसरा डेल्टा एनजी कितना होगा? अरे आप मुझे बताइए, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आपको सब पूरी इक्वेशन दिखी हुई है। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2.5, तो नेगेटिव 0.5 हो गया डेल्टा एन। इज दैट सो? Delta Ng is 1 2 minus 2.5, अरे नेगेटिव होगा, नॉट प्लस, सॉरी, नेगेटिव 1.5 होगा, यस नेगेटिव हाफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई थिंक मैंने कैलकुलेशन किया प्लस, पर ठीक है, यू आर राइट, इट इज नेगेटिव, इट इज नॉट प्लस, इट इज नेगेटिव, राइट। तो 742.7, बट एक बात बताओ, अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है, डेल्टा Ng नेगेटिव है, हाँ डेल्टा Ng नेगेटिव है, बट इधर फॉर्मूले में भी पॉजिटिव है, दिस इज राइट नो, बिकॉज यू हैव डेल्टा U इज Q प्लस W, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, सो you take it to the other side, you get delta U plus delta Ng RT is equal to delta H, so ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सॉरी बोलो, आप लोग प्लस बोल रहे हो, मुझे माइनस क्यों आ रहा है? What is happening?
या मुझे भाग्य मुझे 743 लग रहा था एग्जैक्टली. अश्विनी ऑल्सो सेइंग 743 है ना. प्लस बोल रहे हैं पीयूष. मैंने भी शायद वही गड़बड़ी की जल्दी में आपकी तरह ही. प्लस नहीं नेगेटिव होना चाहिए एंड हेंस इट विल बिकम -743.9. बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला. आई थिंक इट शुड बी दैट टू. व्हाट डू यू गाइस थिंक? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज ओके. डेल्टा एन जी नेगेटिव ही होगा ना. 2 माइनस. ओ आई टेल यू क्या गड़बड़ी हो गई. ये गलत लिख दिया इक्वेशन. I'll tell you what happened. You guys are right. जो पहले करे सही करे. वो यार वो NH4HCN तो सॉलिड है. लाइक एक मिनट टाइपो हो गया क्या? मुझे लग रहा ये गैस कब से हो गया? I was thinking out loud in that कि how is this a gas bro? Anyway, let me fix that. Yeah, sorry about that guys. Sorry about the typo. अभी तुरंत इसको फिक्स किया जाए. जिन लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया एंड फिर भी आंसर को ट्रस्ट करके मुझे आंसर दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. यू आर ऑल वंडरफुल. आई एम सॉरी अबाउट दिस द टाइपो. आई विल फिक्स इट राइट अवे. This has solid gas नहीं है. Yeah. Like मैंने क्यों लिखा? How did I? That's why I come prepared with the question. ताकि ये सब गड़बड़ी को अवॉइड कर सकें. And luckily we caught it. We caught it at the right time. But बहुत जगह I will just change it. Give me 1/2 more minute. All right, we're done fixing stuff. Yeah. So delta NG is +1/2 and -741 होगा. Yeah, I've never understood what that more thing means. Yeah. Guys, apologies. It is this. My -741 याद रहेगा. Let's move on to the next question. Yeah. Calculate the enthalpy change on freezing. This is like a 10th grade का सवाल, ठीक है? And this came in JEE Main by the way. A similar question came in JEE Main this time around. Calculate the enthalpy change on freezing 1 mole of water at 10 degrees Celsius to ice at -10 degrees Celsius. Delta H fusion is some value over here. Try करो. It's okay. Yeah, it's all right. Note. I don't even know what that means, Tishu. You want to try this question out? Yes, Vikas. You right. You awesome. Yes. Sorry about that. The random चीज़ हो जाती है कभी. Let's try this. इसको कैसे किया जाए? See, this makes use of the fact that delta H is a state function. है ना? And there are 3 broad steps यहाँ पे. कौन से 3 steps? I'm just spitballing here. You have ice or water at 10 डिग्री सेल्सियस. फिर मैं उसको लेके आता हूं टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. देन उस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करता हूं टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. एंड देन आई रिमूव मोर हीट. इन ऑल दिस प्रोसेस रिमूविंग हीट, राइट? ठंडा कर रहा हूं मतलब रिमूविंग हीट जस्ट लाइक अ फ्रिज. वही आइस वही तो बनाता है. सो मैंने बना दिया वाटर को टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड देन आई रिमूव मोर हीट टू गो टू -10 डिग्री सेल्सियस. तो 3 चीजें यहां पे हो रही है. MC डेल्टा T 2 बार. एक बार Cp ऑफ वाटर, दूसरी बार Cp ऑफ आइस. और दोनों समय लकीली टेम्परेचर इज -10 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज 10 डिग्रीज लोअर देन इनिशियल टेम्परेचर. सो MC डेल्टा T विल बी नेगेटिव इन बोथ टाइम्स. ठीक है. सी दो अलग अलग. ओके. सारा मास कन्वर्ट हो रहा है, मास डजंट चेंज. व्हाट एल्स इज देयर? हाँ, ये जो फ्यूजन वाला है डेल्टा H फ्यूजन, वो कहाँ गया? हाँ, दिस इज किलो जूल पर मोल. एक ही मोल है क्या? हाँ, एक मोल है. तो ठीक है. देन यू हैव टू ऐड दिस टू इट. दैट्स ऑल. बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे है किलो जूल और यहाँ पे है जूल. ठीक है. जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. यस तीर्थराज, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट. विकास ऑन फायर, इतनी जल्दी. बढ़िया. वेल डन विकास, वेल डन. So this is what I was telling you. Step 1, Step 2, Step 3. 3 चीजें करेंगे हम लोग और तीनों को हम लोग साथ में भी कर सकते हैं. Yeah, but ये 10 को I've written it just as 10. If you want to be precise, delta T always is -10, which I've shown in the next step, right? अगले स्टेप में दिखाया कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इससे -10 हो जाता है. And this heat also has to be removed, so ये भी नेगेटिव है. Why? Because I'm removing heat from the system. बट ठंडा करने का मतलब क्या हुआ? ठंडा करने का मतलब हीट निकालना, राइट? That's what it means. You add heat, गर्म हो जाती है चीजें. You remove heat, ठंडा हो जाता है. So minus, because they are removing heat. Removing heat from system is negative. Important. Please don't make this plus. बाकी yes, it comes out to be -7.151. Beautiful. विकास, तीर्थराज, भाग्या, you're all awesome. थोड़ा टाइम लगा है, थोड़ा नंबर्स है, but you'll be good with this. Next question. Enthalpy of formation 4 substances की दी हुई है. Find the value of delta H reaction for this reaction.
solve this question. मैं तुरंत पानी लेके आता हूँ. Forgot to get my nice little glass of water. I'm going to go fetch that glass of water. इसको आप लोग try करो. Here's a quick trick to do this. Okay. Remember that delta H reaction and delta H formation में क्या relationship है? Delta H formation is 1 mole of product. तो जो भी चीजें RHS में है वो हो जाएंगी पॉजिटिव और LHS में हो जाएंगी नेगेटिव व्हेन आई एम डीलिंग विद डेल्टा एच एफ नॉट. ट्राई करो. यस, श्रीकांत पंपा भाग्या पिछले वाले का आंसर बिल्कुल सही बताया. ये वाला ट्राई करो. एंड व्हाइल यू ट्राई दिस आई एम गोइंग टू जस्ट गो एंड फेच सम वाटर. ओके, बी राइट बैक इन अ मिनट, मे बी लेस देन अ मिनट. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Na 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 na. All right. So Dishu, Tanu, and Faryal have given me the same answer, Tino, and I love that all of you are making sure that your K is small. That is awesome, right? A small K means kilo, but J को please बड़ा करिए. J is capital, J is joules. Okay. Proper noun etc. ध्यान रखना, ठीक है? It's good to take care of that. Capital K means Kelvin. Okay, let's see. यही आंसर आया था, क्या होगा? So, what is the trick to do this? Doing this within 30 seconds. कैसे करोगे आप? Remember, formation of 1 mole of product from standard states the definition. मतलब कि 1 mole on the RHS. तो जो भी RHS वाले में मैं ऐड करूंगा, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा. So I can write that down now. So यहां पे हम लोग डालते हैं इन वैल्यूज को -3 + 3 + 1 -1. दिस सेम आइडिया आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर. उसके बाद तो बस नंबर्स ही हैं, राइट? दिस इज हाउ आई नो कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है. समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव ट्रबल विद दिस, माइनस कहां प्लस कहां पे. तो ये पहले डिसाइड करो. नंबर्स बिल्कुल एंड में डालो, क्योंकि इवन आफ्टर यू डिसाइड प्लस और माइनस, कुछ डेल्टा एच एफ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, तो गेट कंफ्यूजिंग वेरी क्विकली. बहुत जल्दी हो सकता है. बट मेरा सजेशन ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल करो. डोंट वेस्ट टाइम मगिंग थिंग्स लाइक डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज सिग्मा दिस. क्या यार, ये सब क्या बच्चों वाली चीजें हैं. यू गाइज आर अडल्ट्स, यू गाइज आर स्मार्ट अडल्ट्स. ओके, मे बी यू आर नॉट अडल्ट्स येट, बट यू आर adolescents, right? You're 16, 17, whatever. You're all amazing. तो use your brain, थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करो. And this is the best way to do it, so you don't make any mistake. इसमें प्रॉब्लम है. I'll tell you what is the problem with this. Like, अगर तुमने उल्टा मग कर दिया, एग्जाम में उल्टा लिख दिया, बिल्कुल नेगेटिव आंसर आ जाएगा उसका. What you supposed to get? That is risky, है ना? तो what is the trick to this? Delta H formation मतलब RHS में 1 mole of product. तो जो भी RHS में वो पॉजिटिव हो जाएगा, LHS में नेगेटिव हो जाएगा. बट डेल्टा H combustion हुआ. If you have delta H combustion, that means LHS को positive करो, because you are burning 1 mole of whatever stuff you have, right? In enough oxygen. ठीक है? All right. सब लोग देते आंसर. आकाश, जाना है तुमको म्यूट में, ब्रो? Yeah, dude, I don't tolerate random things like this. Cool. Now let's figure this out. कृष्णा जायसवाल, जैसे ही 11th का हम लोग खत्म करेंगे, तुरंत 12वीं का करेंगे. नीट में है कितना से में. आप लोग का बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना कृष्णा, इसलिए मैं 11th का कर रहा हूं अभी, बिकॉज 12th के स्टूडेंट्स का तो सब लोग के सर पे बोर्ड्स का चला हुआ, इसलिए 11th का कर रहे हैं. सो ऑल राइट फरियाल, नो प्रॉब्लम. इज दैट द आंसर? -77.7. इज दैट व्हाट यू गेट? या, ऑल राइट, परफेक्ट, गुड जॉब एवरीबॉडी, गुड जॉब. बिल्कुल एक्यूरेसी से काम करते हो. आई लव दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the standard enthalpy of the formation of NH3 gas? Aakash ji,
न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो वही जो मैंने बताया था, ये वाला तो ज्यादा आसान हो गया. उसमें तो मैं बहुत एफर्ट लगाया. दिस इज वेरी वेरी इजी. लेट्स ट्राई दिस आउट. 2, श्रीकांत बोल रहे हैं 2, समझा नहीं मैं. ऑलराइट. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस. NH3 गैस. ओ कल है केमिस्ट्री एग्जाम श्रीकांत. आई 12वीं का कल है. 12th बोर्ड इज टुमारो. रियली यार, मुझे तो लगा था बाद में. When is CBSE 12th chemistry exam? केमिस्ट्री 27th को है. अच्छा कल शुरू हो रहा है. फरवरी मतलब 22nd. हाँ 22nd को शायद इंग्लिश है ना पहला वाला. राइट. 27th केमिस्ट्री. सिंपल सा सवाल. अश्विनी, पीयूष, भाग्या, श्रीकांत, तनु, राधिका, फरियाल. अच्छा श्रीकांत बोल रहे हैं 11th का. अच्छा ठीक है, हो गया. सिंपल सा है. ये ऑलरेडी दिया है 2 मोल्स का. यू नीड टू मेक इट इनटू 1 मोल, डिवाइड बाय 2, यू गेट -46.2. easiest question on this planet. Let's go to the next one. Calculate the standard enthalpy of formation of this from this data. अच्छा अब क्या करें? This is the question I really like. अब you can get a similar question like this. Most likely नीट में अगर आएगा तो इसी चीजों से आता है, या तो फॉर्मेशन या तो कंबस्शन या फिर रिएक्शन. इन तीनों चीजों में थोड़ा तोड़-मोड़ कर देते हैं. हाउ डू यू डू अ क्वेश्चन लाइक दिस? यू नीड टू नो डेफिनेशन इनसाइड आउट, है ना? तो इसको कैसे शुरुआत करें? हाउ डू वी स्टार्ट दिस? गॉट इट श्रीकांत, गॉट इट. थैंक यू दिशु. हाउ डू यू स्टार्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस? राइट. इसका डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट्स. स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कार्बन, ग्राफाइट, ऑक्सीजन गैस, O2 मॉलिक्यूल, H2 गैस, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. ये स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं 1 एटमॉस्फेयर पे. राइट. या ओके. एंड या दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. सो इसको लिखना पड़ेगा. लिख देते हैं पूरा. ये है पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन बिकॉज आई नीड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट. अब इसको इससे कंपेयर करना है. ट्राई करो. डू यू वांट मी टू हेल्प यू विद दिस? शैल आई हेल्प यू विद दिस और विल यू सॉल्व दिस? I think you can solve it, but if you need my help, I'm here. Yeah. The first step I will do, I'll tell you my thought process. I will like कि ये है LHS में, ये LHS में, ठीक है. मतलब ये हो जाएगा प्लस करना पड़ेगा इसको. ये है LHS में और ये है LHS में, इसको भी प्लस करना पड़ेगा. We'll figure out कितना प्लस करना है, बट प्लस करना पड़ेगा. अब ये भाई साहब है स्कैरी. ये है LHS में, बट इट इज नॉट क्लियर एट ऑल कि यार मैं कौन सा वाला इसको LHS में रखूं या इसको LHS में रखूं. इसको क्या करूं इसके साथ? आई एम नॉट सो श्योर. राइट. बट दिस आई नो फॉर श्योर इज ऑन RHS. बिकॉज आई नो दिस इज ऑन RHS, आई हैव टू सबट्रैक्ट दिस. ओके, यू फॉलो लॉजिक क्या था इसको क्या करने का? आई हैव फिगर्ड आउट कि ये दोनों LHS पे थे, तो आई हैव डन बोथ ऑफ दीज का प्लस. ऑक्सीजन का LHS यहां पे है, बट ऊपर भी LHS में, तो क्या करूं विद दिस? इन दोनों का ऐड करना है. लास्ट वाला रिएक्शन क्या करना है? आई नो लास्ट वाला रिएक्शन को रिवर्स करना है बिकॉज दिस नीड्स टू गो टू RHS. या दैट इज व्हाई वी डू दैट. बस यही तो है और कुछ नहीं है. एंड ऑफ कोर्स ये 2 है तो वी विल डू 2 टाइम्स एंड आल्सो प्लस. सो इन अ नटशेल, पॉजिटिव टाइम्स 2, पॉजिटिव टाइम्स 1, एंड लास्ट वाला विल बी जस्ट नेगेटिव टाइम्स 1 बिकॉज वी आर रिवर्सिंग दिस. एंड इफ यू वांट टू चेक दैट, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए हाउ डज इट वर्क आउट. इट ऑल गेट्स कैंसल्ड आउट, कोई चक्कर ही नहीं है. ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं. यू हैव हाफ इंटू 2 प्लस 1 यहां से विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2. वाई माइनस 3/2? इधर LHS में है 3/2. मैंने रिएक्शन रिवर्स किया तो दूसरी तरफ चला गया RHS में, तो इसीलिए यहां पे LHS में थे 2, RHS में थे 3/2. दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो बचा हाफ, which is exactly what we want. Why is this happening? Because of Hess law of constant summation. Hess law. Also, because delta H is a state function. ये दोनों same ही चीज है. They're both same things. O वाला part is confusing. I know exactly, Ashwani. I know. ABCD. Attend my sessions, bro. Physical chemistry is my strength. Because I'm a really good teacher. I'm not taking credit for it, ABCD. I'll help you out, dude. Check out what I'm doing on the JEE channel. I am doing exemplar sessions, and at the end, I'm doing one question at the level of JEE Advanced. Check out the previous ones. आगे वाला भी देखना. Yeah.
Thermodynamics is awesome and easy. That's lovely for y'all. Good to hear. Good to hear this. Amazing. Absolutely amazing. ABC, you can check out my sessions on the JEE channel right here. 239. Okay. Somebody was saying कि O का confusing था. अश्विनी, वही मैंने बोला कि अगर O confusing है तो छोड़ दो. Let's figure out what is not confusing. CH3OH. And because you can figure this out, O अपने आप लाइन में आ जाता है. You saw that, right? हमने figure out किया methanol का, और ऑक्सीजन अपने आप लाइन पे आ गया. And that's the beautiful thing about delta H being a state function. ठीक है. अगर CH2 और CH3OH का सब हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री को ध्यान रखते हुए, लाइक H2 को 2H2 करके सब कुछ कैलकुलेट किया है, अपने आप द ओनली थिंग दैट विल रिमेन इज हाफ O2. ठीक है, उसको ट्रस्ट करके यू कैन गो ऑन. एंड इफ यू आर डाउटफुल अबाउट दिस कि अरे कैसे बचेगा, देन थोड़ा थ्योरी रिवाइज कर लो. दैट इज व्हाट विल हेल्प यू फ्रॉम एनसीईआरटी. कहीं कुछ फैंसी चीज जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी से. ठीक है. एंड यू आर ऑल एब्सोल्युटली राइट. द आंसर इज नेगेटिव 239. हाँ, इट्स ओके अश्विनी, लड़का और लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे बोलने से पहले लिंक आया था. हाँ पीयूष, ये मालूम है क्यों मेरे बोलने से पहले लिंक आ जाता है? क्योंकि मैं खुद ही लिंक डालता हूँ, है ना, और मैं अपने पीछे डाल रहा हूँ, और मैं जो बोलता हूँ उसके 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद आपको सुनाई देता है, क्योंकि देयर इज अ बिट ऑफ अ लैग बिटवीन व्हाट आई से. वो हम लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में इंड्यूसेस लैग, आई डोंट नो व्हाई दैट इज, बट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में 10 सेकंड लैग हो जाती है. मे बी बिकॉज द प्रोसेस, जो भी करता है यूट्यूब बाबा. अगला सवाल देखते हैं. ये वाला हो गया. अच्छा, फॉर दिस रिएक्शन एट what temperature? Now we are going to spontaneity. Spontaneous चीजों के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं. At what temperature will the reaction become spontaneous, considering delta H and delta S to be constant over this temperature range? Wonderful question. I really like this because इसमें एक ग्राफ का बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, जिसकी वजह से यू कैन इंटरनलाइज यहाँ हो क्या रहा है. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट एनी ग्राफ. डरा नहीं रहा, आपको कैसे भी चाहो कर सकते हो, बट स्मॉल डिटेल है, हम काफी अच्छी डिटेल है. सॉल्व दिस, ट्राई करो. या लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. 10 सेकंड पीछे क्यों आते हैं, इसके पीछे भी फिजिक्स का हाल है. हाँ, फिजिक्स का हाथ ये है कि कोडिंग में जो होता है, I don't think it has to do with light and sound, okay? Don't go into that WhatsApp science. It has to do with the encryption and all of that stuff. खैर anyway. हाँ देखो, गिब्स इक्वेशन, ओके. सो टेम्परेचर आप लोगों को पता चल गया है, बट देखो फरियाल बोल रही हैं कि 2000 से ज्यादा, अश्विनी बोल रहे हैं कि 2000 केल्विन से कम. अब ये नंबर दोनों का 2000 आया. पीयूष ऑल्सो सेइंग 2000, बट कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रेटर, कुछ लोग बोल रहे हैं कम. कैसे फिगर आउट होगा ग्रेटर और कम, कैसे फिगर आउट हो, थोड़ा सोचो. इसलिए मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं. डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना. इसको मैं, वो इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन यहां पे फॉर्म में डाल सकता हूं. ठीक है. और क्या क्या दिया है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये दोनों दिया है. बट व्हाट आर वी प्लॉटिंग, क्या प्लॉट करेंगे. ठीक है, अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो ये एक वेरिएबल हो जाएगा, है ना, और डेल्टा जी दूसरा वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं. दिस आर कांस्टेंट, दिस टू आर कांस्टेंट्स. ठीक है, तो वी विल प्लॉट डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, और कहीं पे वो बीच में डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, जहां पे हो रहा है इक्विलिब्रियम एटसेट्रा एटसेट्रा. और इसके नीचे या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में होगा. दिस विल बी these are two graphs that are possible. स्ट्रेट लाइन तो है, वो तो कोई डाउट नहीं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. मैंने लिखा है y इक्वल टू mx प्लस सी वाले फॉर्म में. ये माइनस m मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस डेल्टा s इज द स्लोप. ठीक है, माइनस डेल्टा इज द स्लोप, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, नॉट दिस. व्हाई? बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव. देखो, ये सब चीजें थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, कभी लाइफ में मग नहीं करना पड़ेगा. If you're asking me this question, why is it greater than 2000? Why not less than 2000? Right? I'm answering that question. उस क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा हूं. अगर मैं स्लोप ऐसा बनाऊं, which is negative slope, right? Well, आंसर तो आया था 2000 केल्विन, that is fine. But when does it become spontaneous? देखो, as I increase the temperature, है ना, G becomes more and more negative. समझ रहे हो? तो
दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग डेल्टा जी नेगेटिव तब होता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए. दिस वाज द ग्राफ पार्ट दैट आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट. ठीक है, बिकॉज इस इक्वेशन से तो यू ओनली गेट दिस T इक्वल टू 2000 केल्विन. अब उससे ज्यादा उससे कम किसमें होगा स्पॉन्टेनियस? हाउ डू यू नो? बिकॉज ऑफ दिस आइडिया स्लोप इज नेगेटिव. व्हाट इज द स्लोप? माइनस डेल्टा एस. ब्यूटिफुल इजंट इट? यस श्रीकांत, यू अंडरस्टैंड? अश्वनी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बट ये मिस्टेक के पीछे हमको सोल्यूशन ढूंढना है ना अश्विनी? दैट इज द सोल्यूशन आई एम टेलिंग यू. y इक्वल टू mx प्लस सी. क्यों श्रीकांत? वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट है. दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट. इफ दे आर बोथ कांस्टेंट्स, एक कांस्टेंट को मैं m लेता हूं, दूसरे को c. अब मैंने इसको m क्यों लिया, इसको m क्यों नहीं लिया? बिकॉज देखो ये बदल रहा है. बाय t is changing, and when t changes it causes g to change, है ना? तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट मतलब डेल्टा जी, डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर बदला तो डेल्टा जी बदला. थोड़ा सा मैथ का लेसन हो गया यार, ये मैथ्स 9th 10th स्टैंडर्ड की है, इससे मत डरना, ये मैथ जरूरी है. दिस मैथ यू विल नीड थ्रू आउट डॉक्टरी. ठीक है, आप लोग बहुत एनालिसिस करने वाले हो जहां पे ये सब मैथ्स बेसिक चीजों आएगी. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एग्जैक्टली पीयूष, यस, है ना? डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों कांस्टेंट है, तो मैंने एक को एम एक को सी ले लिया. किसको एम किसको सी लिया? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख के. ठीक है, अगर इसमें डाउट लग रहा है खान अकेडमी से पढ़िए, दे टीच वेरी नाइसली. और अगर आप चाहते हैं तो खुशबू और अर्श वो दोनों भी पढ़ाते हैं, केटन वाले हमारे चैनल पे, वहां पे देख सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट, ऑसम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला तो हो गया. नेक्स्ट सवाल. एक और, डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन बताइए. अब 2Cl गैस गिविंग मी Cl2 गैस. इसको क्या बोलते हैं? ये एटमाइजेशन का उल्टा हो गया, राइट? एटमाइजेशन होता है यू हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल, वो टूट के बन गया 2 क्लोरीन एटम, दैट इज एटमाइजेशन. दिस इज रिवर्स ऑफ एटमाइजेशन, मॉलिक्यूलराइजेशन, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, डजंट मैटर, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ एटमाइजेशन. एनीवे, जस्ट सम आइडियाज टू थिंक अबाउट. डेल्टा एच और डेल्टा एस में निकालने की आई थिंक हेल्प करेगा. ट्राई करो इसको. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ हिंट. जो मैंने बोला मैं रैंडम नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा हिंट है इधर. ओके, अश्विनी सिंह, एच एन एस दोनों नेगेटिव. पीयूष, अश्विनी, विकास, ऑल राइट. देखते हैं, यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, क्लोरीन अलग अलग है, फ्री रेडिकल होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, बट अकेले बैठे हैं. अब वो लोग साथ में बॉन्ड बना रहे हैं. बॉन्ड बनाना मतलब एनर्जी रिलीज करना. आई एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम्स ना. थिंक ऑफ दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट? आवाज निकल रही है मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है. एंड टू पुल बॉन्ड्स अपार्ट that requires energy. So energy is released when bonds are formed. Bond formation releases energy. मतलब negative, negative. और डेल्टा एस का क्या करें यार? ज्यादा ऑर्डर हो रहा है, एटम्स आराम से थे, मॉलिक्यूल बन गया, मोर ऑर्डर, दिस ऑल्सो नेगेटिव. खत्म. दिस आंसर टू दिस. लवली. फॉर द रिएक्शन, अगला सवाल. फरियाल बोल रहे हैं कि क्या हुआ राधिका? बहुत शांत एंड सडनली. अच्छा नहीं, अच्छा, दैट्स नॉट एन इमोजी. आई थॉट आई वाज एन इमोजी. You know, like a, I don't know, like eyes closed, like frowning kind of emoji. But I get it. They're both negative. All right, good to hear your inputs, Radhika. For this reaction, calculate delta G naught and predict whether the reaction may occur spontaneously. Spontaneous मतलब delta G less than 0. अगर मिल गया तो spontaneous होगा. How do you do this? यहाँ पे दोनों चीज को साथ में यूज करना है, दो अलग अलग चीज को. कौन सी दो चीजें? You tell me. No, it's okay, sir. Don't worry. Yeah, absolutely. Pampa, Tisra, Shrikant. Let's try this one. Yes. What are the two equations you need to solve this? अब जो हमने शुरुआत में पढ़ा था और एंड में अभी पढ़ रहे हैं, वो दोनों को रिलेट करना है. क्या? डेल्टा U is Q plus W. Okay. Q is delta H, W is minus PdV. Okay. And then, since pressure constant है, so you can say that P delta V is delta NCERT. है ना? हाँ, डेल्टा NCERT, यार, दैट्स व्हाट यू हैव टू यूज. ये दोनों चीजें यूज करो. और लास्टली, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. ये तीन चीजों को यूज करके एक छोटा सा सवाल बन गया. ट्राई करो. ओके, विशु सिंह पॉजिटिव. विकास इज 0.16 किलो जूल. दो इक्वेशन लगेंगे. पीयूष मेरे हिसाब से 4 इक्वेशन नहीं, बट जैसा भी है, 2 4 जितने भी इक्वेशन लगाने लगा लो. पॉजिटिव मतलब नॉट स्पॉन्टेनियस. ठीक है, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये. ठीक है, सही बोला आपने, 2 इक्वेशन लेंगे. इफ यू वांट टू गो इन डिटेल, या ये कहां से आया? दिस इज फ्रॉम
delta U is Q plus W, which is delta H minus P dV, P delta V, and then you say minus delta NGRT. इसलिए मैं बोला 3 या 4 इक्वेशन, बट इट्स ओके, 2 में से भी काम चला लेंगे. ठीक है. So delta H is negative 10.5 into 10 power 3 minus this whole thing, RT, and then this guy as well, TDS also. So this is minus T delta S. यहाँ पे 10 power 3 डालना मत भूलना. I've just taken 25 by 3. I know technically 8.314. I know ये 298 है, but it's okay. I just took it to be 300 Kelvin. Yeah. If you're talking about not, it should be this temperature usually. Yeah. Positive, not spontaneous. बढ़िया बढ़िया. So on this CAMI calculation मुझे 230 जूल मिला. Actual idea as you guys are saying, सही बोला आपने कि 160 जूल है, which means कि not spontaneous. Good job, you're also quick. I love it, I love it. अगला सवाल देखते हैं. Equilibrium पे बहुत बातें हो रही हैं. Equilibrium पे एक दो और छोटी छोटी बातें हो जाए. The equilibrium constant for a reaction is 10. What will be the value of delta G naught? Yes, exactly. भाग्या, तीर्थराज, राधिका, श्रीकांत, दिशु, फरियाल एंड विकास, पीयूष. अरे पीयूष आंसर नहीं है, बट इट्स ऑल राइट. ऑल ऑफ यू राइट. बिल्कुल सही बोला, सबने सही बोला. इसको कैसे करें? यहां पे यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. एक्चुअली द इक्वेशन इज इंटरेस्टिंग. इट्स डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln q when q is equal to k delta g equal to 0. ये आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में, बट अगर ऑलरेडी पढ़ चुके हो then you know that this is what is applied over here. अरे विकास इतनी जल्दी आंसर देते हुए, लव इट, बहुत बढ़िया. डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, है ना. अगेन आई कैन टेक आर एस 25 by 3 एंड टेम्परेचर 300 अप्रोक्सीमेटेड. या अगर आपको ठीक से प्यार से करना है then you got to do this. Yeah, you got to use a calculator. You got to use a calculator. Since I don't like using calculators, I got this as the answer, same as Piyush. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आगे डेसिमल है. Okay, दिशु, all right. Lovely, lovely. हाँ बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल सही आंसर बताया. This is delta G naught. Awesome. Specific, if you want the actual answer is 527 kilojoule अगर 8.314 low and all of that. ठीक है, बढ़िया बढ़िया. I like how everyone's approximating. मतलब आप लोगों को भी वही आदत लग गई जो मैंने आपको सिखाई है. बढ़िया, lovely. Let's go to the next question. Calculate the entropy change in surroundings when 1 mole of H2O is formed under standard conditions. 1 मोल पानी बन रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस. हाँ, सराउंडिंग, एक मिनट, सराउंडिंग. अरे वाह, सराउंडिंग की बात हो रही है, सही है. हम लोग यूजली हमेशा सिर्फ सिस्टम की बात करते हैं, बट सिस्टम में एनर्जी आती कहां से? सराउंडिंग से. एनर्जी जाती कहां है? सराउंडिंग को. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस इन दिस क्वेश्चन. बिल्कुल सही पंपा. यस, एब्सोल्युटली. वी हैव मूव्ड ऑन टू द अगला सवाल. सही है. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सो नाउ इन दिस केस आप लोग इसको क्या करोगे? हाउ डू यू स्टार्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस? रियली इसको शुरू कैसे करें? हेल्प मी आउट विद दैट. डेल्टा एच एफ मतलब डेल्टा एच एफ नेगेटिव मतलब ये बना, अगर 1 मोल पानी बना तो 286 किलो जूल हीट निकल रही है. निकल रही है मतलब कहां जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है. ये आइडिया समझ में आता है ना? सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स. अगर पानी की बात हो रही है, ये पानी है तुम्हारा सिस्टम. एवरीथिंग दैट्स नॉट द पानी इज द सराउंडिंग, इंक्लूडिंग द बाउंड्री, है जो भी है, बाउंड्री के बाहर जो भी है. ठीक है, दैट वाज नॉट अ गुड एग्जांपल बिकॉज ग्लास में आधा खाली आधा फुल है. व्हाटएवर. वाटर, ओके, दिस इज योर सिस्टम. एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग, है ना. तो अगर इसमें से हीट बाहर जा रही है, दैट्स व्हाट इट मींस. माइनस 286 का मतलब क्या है? तो दिस गाय लूजेस, दिस गाय गेन्स प्लस 286 किलो जूल, है ना. सो सराउंडिंग हैज गेन्ड 286 किलो जूल ऑफ हीट. दैट इज द की आइडिया हियर. अच्छा, अब क्यू मिल गया तो क्या करना है? टेम्परेचर सराउंडिंग का चाहिए. टेम्परेचर सराउंडिंग इसलिए चाहिए, फिजिक्स में पढ़ा हुआ ना, हीट सिंक होता है. सराउंडिंग इज अ हीट सिंक, मतलब उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है ना. सोर्स या सिंक, इधर जो भी बोलो, डजंट मैटर. 0.96 किलो जूल, 959. ओके, कैलकुलेट. अरे नहीं दिशु, नो प्रॉब्लम, यूज अ कैलकुलेटर. सॉरी क्यों बोलना है?
अब ऐसे अजीब नंबर आपको बोलेंगे 298 केल्विन, तो कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अश्विनी, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अश्विनी अश्विनी अश्विनी, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये थोड़ा रिस्की चीज है बोलने का। आई विल गेट टू द लास्ट क्वेश्चन, आई टेल यू व्हाई दैट इज रिस्की। दैट इज ओके, जो व्हाट अश्विनी सेड इज ओके इफ यू हैव अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ बाय द वे, देन डेल्टा एस सिस्टम इज लेस देन डेल्टा एस सराउंडिंग, है ना, एंड टेक्निकली सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये क्या लिख रहे हैं, सराउंडिंग बी ग्रेटर देन जीरो। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल के जीरो हो सकता है, इरिवर्सिबल के हमेशा बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये वाला न भी हो तो ये वाला हमेशा है, ठीक है, बिकॉज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स, ठीक है। यहां से निकला 287, ऑब्जॉर्ब हो गया सराउंडिंग से, सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट, इट इज क्यू बाई टी, नेगेटिव ऑफ क्यू सिस्टम स्पेसिफिकली बाई टी, अस्यूमिंग ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया, ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ आंसर राइट। तीर्थराज, एक जीरो आप कहीं ना कहीं आगे पीछे हो गया आपका, 59.7 जूल होगा या 0.96 किलो जूल, बोथ आर द सेम, ओके, ऑल राइट, लवली। अरे वाह, विद दैट वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन। आज एक एक्स्ट्रा मैं सवाल लेके आया था इसी कारण, बिकॉज हम लोग सराउंडिंग की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी डिसाइडेड टॉक अबाउट सराउंडिंग, और एक देखो मैंने यहाँ पे जेई लिखा है, इसमें अलग है ना, जेई का सवाल है, पीवाईक्यू है जेई का। आज सुबह ही एक स्टूडेंट ने मेरे से इसके बारे में पूछा, एंड आई थॉट दैट वाज सेरेंडिपिटी, मुझे लग रहा था अरे आज थर्मो का सेशन है और स्टूडेंट भी थर्मो का डाउट पूछ रहा है, तो चलो डाल देते हैं सेशन में, क्योंकि अगर उसको डाउट है तो हो सकता है आपको भी डाउट हो। इसको ट्राई करो सॉल्व करना। वी हैव अ गुड 8-9 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 350 Kelvin in a 2-liter vessel of thermally conducting walls which are in contact with the surroundings. Thermally conducting मतलब heat आगे पीछे जा सकती है, it can go in, it can go out, okay. अगर thermally insulated होता तब Q would be 0, but thermally conducting मतलब Q is not equal to 0. That's what this means. It undergoes isothermal reversible expansion from 2-liter to 3-liter against a constant pressure of 4 atmosphere. ये वाला शब्द अजीब है, constant pressure of 4 atmosphere. The change in entropy of the surrounding is in joule per Kelvin कितना है, R की वैल्यू दी गई है। चलो यार 25/3 ले लो, चलता है। 350 केल्विन को मत बदलना, कीप इट एट 350, डोंट चेंज दैट। वैल्यू ऑफ log 3, ठीक है। दिशा, log 3 कितना होता है, 0.5 होता है शायद, है ना। log 2 क्या होता है, 0.3 होता है। ln3 1.1 होता है, ln2 0.7 होता है, और कुछ चाहिए। log 5 0.7 होता है, ln5 नहीं बताऊंगा यार, वेरी अनोइंग, बस ना, और क्या चाहिए, चलो ln5 भी लिख देते हैं। 2.3 टाइम्स दिस कितना होगा, 2 आई थिंक, ln5 शायद 2 है, देख लेते हैं। 1.6 not 2 1.6, हाँ मैंने गलत मैथ किया, 0.7 into 2.3 is not this thing यार, 1.6, हाँ ठीक है, और कुछ चाहिए, ओके। 3.37 3.37 3.24 3.24, प्लस या माइनस, तनु, दिशु, पीयूष, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स, प्लस और माइनस। अभिनंदन, अभी आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही थी, अभी तो आपकी इंग्लिश बहुत बहुत टॉप की है। You are saying my English is very difficult and your English is very nice. जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको टाइम पास करना है वो टाइम पास करेगा। अभिनंदन, अब तुम समझ लो which category do you fall into. You haven't given a single answer in this, but thank you for sticking around. It's wonderful you've been around. But थोड़ा बहुत यूजफुल भी लग रहा है तो यूज कर लो। इतना पेशेंटली कोई पढ़ाता नहीं है, सब लोग करते हैं नाच गाना, हम लोग करते हैं पढ़ाते हैं, ठीक है। प्लस 3.37 प्लस, ओके, वाई प्लस, वाई नॉट माइनस, मैं सराउंडिंग की बात कर रहा हूं। देखो यार, थिंक अबाउट लाइक दिस, हाउ, वाई इज इट प्लस, कैन इट बी प्लस, थिंक अबाउट इट, इफ समथिंग इज एक्सपेंडिंग मतलब एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज, सो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम शुड बी प्लस, डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगी। आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, राइट। योर फॉर्मूले आर राइट, बट व्हाट आर दोस फॉर्मूले, बिल्कुल सही बोला पीयूष, रिट्रैक्ट मत कर,
फॉर्मूला छोड़ दो, आई एम जस्ट आस्किंग प्लस और माइनस. यार, if something is expanding, that entropy must increase. So entropy of surrounding must decrease. Like, जब मैं गुब्बारा फुलाता हूं, when I blow into a balloon, the balloon expands, right? But the surrounding contracts. ये समझ पा रहे हो या फिर ये ज्यादा abstract हो गया? When I blow into a balloon, the balloon expands, but how does it expand? It expands by pushing against the atmosphere. So the atmosphere contracts. The atmosphere doesn't care, भाई इतना बड़ा है, but it contracts. बहुत थोड़ा सा contracts. So जो in that case, इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, उसकी एंट्रोपी कम हो रही है, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, सराउंडिंग एंट्रोपी मस्ट डिक्रीज. इट शुड बी नेगेटिव. आई जस्ट फील सो. यू थिंक अबाउट इट. आई फील सो. आप बताओ आप क्या सोच रहे हो. पहली बात, डेल्टा एस सराउंडिंग इज नेगेटिव डेल्टा एस सिस्टम. व्हाई? बिकॉज ये है रिवर्सिबल. इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल लिखा है इसलिए. इरिवर्सिबल क्यों है दिशु? ये तो रिवर्सिबल लिखा है. इरिवर्सिबल क्यों होगा? रिवर्सिबल लिखा है. नाउ व्हाट इज कंफ्यूजिंग हियर is this constant pressure of 4 atmosphere. This is what is annoying you. Why? क्यों प्रॉब्लम है? अभी बाहर 1 atmosphere है, वो भी constant है. So I can have a reversible process against external pressure that is constant. Why not? I do it very, very slowly. If I do the process extremely slowly, although बाहर का pressure 4 है, इसका internal pressure बहुत धीरे 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 बढ़ेगा. ठीक है? So don't get confused by this 4 because you have used the formula, you got the right answer. It is reversible. Process irreversible नहीं है. Once you write this, the formula is negative R ln V2 by V1, not R ln V2 by V1. है ना? Sir, E is 0. E is 0. हो सकता है E 0 हो. And you are right. E is 0 because it's isothermal. E मतलब U ना. E और U is the same thing. Isothermal यानी कि U is 0. Exactly. Hence Q is negative W. But that's another thing. Now, Dishu, with your logic, shouldn't we be saying that Q is negative of minus P delta V and not this R ln V2 by V1? Why do we use this formula and not this? बताइए कोई मुझे. We have 2-3 minutes. I took enough time for this question because I want you to understand this concept once and for all. कभी नहीं भूलोगे तुम लाइफ में इसको. Why did we use this and not this? Because what is delta S system? It is integral of Q by T, और Q क्या होता है? It is equal to minus W. Hence I get it to be RT ln V2 by V1 divided by T. Hence I get it to be R ln V2 by V1. ये डेरिवेशन है, ठीक है. डेरिवेशन मैंने क्लास में कराई है, अभी आपको नहीं समझ. लुक एट द क्लास नोट्स. क्लास कहाँ पे? यहाँ पे. P is not given. फिजिक्स के डिराइव किया. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया पीयूष. वेरी गुड, वेरी गुड. यू कैन चेक द थ्योरी देयर. ओके, ठीक है. बट फिजिक्स केमिस्ट्री इधर वे इज द सेम थिंग. नो, वही तो मैं आपको बोल रहा था यार, तुम कोई भी यूज करो. फिजिक्स केमिस्ट्री डजंट मैटर व्हाट इक्वेशन यूज, आंसर शुड बी द सेम. आंसर अलग नहीं हो सकता है. ठीक है. व्हाई आई एम आस्किंग अगेन, डू वी यूज दिस एंड नॉट दिस? दिशु, यू आर सेइंग ना, आप सही बोल रही थी. व्हाई डू वी यूज दिस इक्वेशन? लेट्स नंबर इट सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाई डू वी यूज 1 and not 2? Why 1 and not 2? Anybody wants to help me with that? Why 1 and not 2? I'll wait for a minute and then I'll give you the answer. Yeah, sure, Ashwini. Number is fine. But मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हो, 2 क्यों नहीं यूज कर रहे हो? नहीं दिशु, साइन कन्वेंशन कुछ अलग नहीं है, सब सेम है. फिजिक्स में डेल्टा एस है ही नहीं. साइन कन्वेंशन अलग हो सकता है बट आंसर इज सेम. नो, आई टोल्ड यू. वो साइन कन्वेंशन अलग, फॉर्मूला भी तो अलग है. देयर delta U or delta E is equal to Q minus W in physics. In chemistry, it is delta U is equal to Q plus W. Sign convention अलग है तो फॉर्मूला भी तो अलग है, तो it comes to be the same thing. कुछ फर्क नहीं है. But since मुझे कोई बता नहीं रहा है, the reason why we use this equation and not 2 is because delta S of system is always defined as Q reversible by T. You remember integral of this. You remember मैंने जो शुरुआत की थी सेशन में, आई स्टार्टेड विद द सेम थिंग. इट डजंट मैटर इफ योर प्रोसेस इज का पाथ क्या है. दिस रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, P equal to 0, V equal to 0, T equal to 0, delta T, P, delta P. If any of this is there, these are all paths. Reversible मतलब millions of paths, infinite paths, but they're all paths. Doesn't matter. It is always going to be this. ठीक है.
and because it is reversible, इसीलिए I can say that delta S system is equal to negative of delta S surrounding. ठीक है, cool. Yes, Piyush, absolutely. Did you follow why I use this integral वाला equation and not this other वाली चीज which was, you know, क्या था दूसरी वाली चीज? So I've got negative 3.33 किलो जूल. अब वो minus 3.2 हो सकता है. मैंने स्कैम किया ना. I use R as 25 by 3. You can use 8.74 कर सकते हो. I use 1.1, 0.7. देख लेना. Now, why did I not use this Q is equal to minus W equal to कितना था वो? P into delta V. Why did I not do this? Because this is not Q reversible. This is not Q reversible. But if this was an irreversible expansion, then I would say delta S surrounding would be Q that goes into surrounding by T. इस Q में हम लोग इसको यूज करते. अगर ये irreversible होता तब you would use this thing of यहां पे P delta V वाला idea by T. समझ में आया? Cool. अभी पूरा रिपीट हो तो क्या अश्विनी? I just repeated it. Maybe there's a lag between 10-15 seconds or so. Is this okay? Yeah, this is not strictly in your syllabus, but I thought बता देना चाहिए because NCERT goes to that edge and doesn't explain this in too much detail. ये वाले part NCERT नहीं explain करता है. What do you do with the irreversible process? Irreversible process में इसीलिए तो this is why delta S of surrounding will be greater than delta S of system and overall जो है greater than 0 हो जाएगा. Cool. All right. बढ़िया. Thank you so much for your time. मुझे ये लास्ट वाला क्वेश्चन करने में बहुत मजा आया. सारे क्वेश्चन करने में मजा आया, but I like doing this one as well. So, if you want me to do more such JEE main के questions, end में बस एक क्वेश्चन 5-7 मिनट we'll spend on that one question. डिटेल में theory उसकी पढ़ेंगे through this question. Let me know in the comments of this video if you want me to do questions like this. ठीक है? Otherwise, as usual हम लोग NCERT subjective तो करते रहेंगे. We are not changing that at all. थोड़ा सा modify करना चाहता हूं by adding question like this. If you enjoyed this and you haven't subscribed already, please do subscribe. It will help us get you awesome such content. चलो, see you all on Thursday. Thank you for your time. मिलते हैं. हम लोग शुरू करेंगे equilibrium. पढ़ के आना, बहुत ढेर सारे सवाल हैं. We're going to do it in 2 parts. One on Thursday, one on Saturday. If you want to check out exemplar के question, मैं JEE channel पे 6:30 बजे. See you. Bye. Take care. Thank you all for your time. Bye. Next chapter equilibrium. Dishu, if you would like them, इस वीडियो के comments में डालना कि hey, get us JEE main question at the end, and that will help me to bring that to you. All right. See you. Bye bye.